Good morning, everyone. আটাইলৈ সুপ্ৰভাত। আমি আজি চতুৰ্থ দিনত আহি ভৰি দিলোহি বিবেকশালা সামাৰ কেম্পৰ। আচ্ছা, তোমালোকে এতিয়া আমাৰ আজি যিটো কোটেশন, এই কোটেশনটোৰ ওপৰত প্ৰথমতে নিজৰ হেৰিখিনি ক'বা, অনুভৱখিনি হেণ্ড ৰেজ কৰিবা। शांतनु जी नाम बोलिएगा। बोला बीतिका। सर আমি কোনোবা এটা বস্তুক ভাল মনেৰে চালে সেইটো ভাল দেখো আৰু কোনোবা এটা বস্তুক বেয়া মনেৰে চালে বেয়া দেখো। ভাল বেয়া দুইটা আমাৰ মনতে থাকে, গতিকে সকলো বস্তুক ভাল মনেৰে চাবলৈ আমি প্ৰয়াস কৰিব লাগে। গুড। আৰু নেক্সট। शानवी। Good morning, sir. Good morning. If we think positive, then it will be positive, and if we think negative, then it will be negative. We should always think positive. Yes, good. Next. Darioli. আমাৰ যিখন জগত দেখি আছো, আমাৰ নিজৰ মানসিক সংস্কাৰেই সেয়া সৃষ্টি কৰিছে। আমাৰ এই চিন্তাবোৰে বস্তুবোৰক সুন্দৰ বা কুৎসিত কৰে। সমগ্ৰ সংসাৰখনেই আমাৰ মনৰ মাজত আছে। সেইটো কাৰণে সঠিক দৃষ্টিৰে সকলোবোৰ চাবলৈ শিকিব লাগে। Okay. পৰীক্ষিতা। আমি আমাৰ চাৰিওফালে যিবোৰ বস্তু আছে সেইবোৰ আমাৰ মনে সৃষ্টি কৰিছে, আমাৰ মানসিক সংস্কাৰে সৃষ্টি কৰিছে। সো আমি সেইবোৰ বস্তু যদি আমাৰ মনে যদি সেইবোৰ বস্তু মানে ভাল দৃষ্টিৰে চাওঁ তেনেহলে সেই বস্তুবোৰ সুন্দৰ হ'ব, যদি বেয়া দৃষ্টিৰে চাওঁ সেই বস্তুবোৰ বেয়া হ'ব। সেইকাৰণে আমি সকলো বস্তুৰ ভাল দৃষ্টিৰে চাব লাগে। Good. Okay. Okay. Harshita. আমি যিখন পৃথিৱী দেখি আছো, আমাৰ নিজৰ মানসিক সংস্কাৰে সেয়া সৃষ্টি কৰিছে। আমাৰ এই চিন্তাবোৰে বস্তুবোৰক ভাল বেয়াৰ সৃষ্টি কৰে। গোটেই সংসাৰখনে আমাৰ মনৰ মাজত থাকে। সেইবাবে সঠিক দৃষ্টিৰে সকলো চাবলৈ আমি শিকাটো উচিত। Okay. Okay. Now, Raisen Das. স্যার, আমি সকলো বস্তুৰ ওপৰত ভাল দৃষ্টান্তৰে চাব লাগে। Okay. Okay. Himjyoti.
মাইকটো অন কৰা হিমজ্যোতি। স্যার হয় কোৱা। স্যার আমি যদি গোটেই পৃথিৱীখন ভাল দৃষ্টিৰে চাওঁ তেতিয়াহ'লে গোটেই পৃথিৱীখন সৰগ যেন হ'ব আৰু যদি আমি গোটেই পৃথিৱীখনকে বেয়া দৃষ্টিৰে চাওঁ তেতিয়াহ'লে গোটেই পৃথিৱীখনে নৰকৰ সমান হ'ব। কোনো এটা বস্তু আমাৰ আমাৰ মনৰ কথাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। আমি যদি কোনো এটা বস্তু ভাল চকুৰে চাওঁ তেতিয়াহ'লে বস্তুটো ভাল আৰু যদি আমি বস্তুটো বেয়া চকুৰে চাওঁ তেতিয়াহ'লে সেই বস্তুটো বেয়া। সেইকাৰণে আমি সঠিক দৃষ্টিৰে সকলোবোৰ বস্তু চাবলৈ শিকিব লাগে। বঢ়িয়া বঢ়িয়া। जिया। इस कोटेशन से मुझे यह समझ आया कि हम संसार को अपने मन के आंखों से देखते हैं। हम जैसा देखना चाहे हमें वैसा ही नजर आएगा। हमारे मानसिक संस्कार से यह सृष्टि होता है कि हम किसी भी वस्तु को सुंदर या खराब देख सकते हैं। संसार हमारे मन में ही है। हमें इस सच्चे मन से देखने के लिए सीखना चाहिए। বঢ়িয়া। कि कृष्णांकी दत्ता। मृण्मय। ओके सही प्रिया। স্যার open your camera. Saitya, open your camera. স্যার আমি যদি পৃথিৱীক ভাল দৃষ্টিৰে চাওঁ আমি আদৰ কৰো মানুহক তেতিয়াহ'লে তাহাঁতেও আমাক আদৰ কৰিব। যদি আমি তাহাঁতক বেয়া দৃষ্টিৰে চাওঁ তাহাঁতক ভাল নাপাওঁ তাহাঁতেও আমাক ভাল নাপাব। বঢ়িয়া। Okay, one last. Hamizul Rahman. Hamizul, open your mic. Okay, Hamizul का कुछ Abhigan Bharadwaj. Yes, sir. Sir, everything depends on our mind. If we see anything positively, then it will be a beautiful world. And if we see anything negatively, then it will become an ugly world. So everything depends on our mind. And first we have to beautify our mind. That is why our mind is all in all. And our mind is like a mirror. Very good, Abhigyan. Okay. সকলোৱে বহুত ধুনীয়াকে কৈছা। আমাৰ আৰু হেণ্ড ৰেজ আছিলে কিন্তু আমি এতিয়া সময়ৰ কাৰণে আমি ইয়াক এইখিনিতে আলোচনা কৰি সামৰিম। স্বামী বিবেকানন্দই কৈছে যে আমি যিখন জগত দেখি আছো আমাৰ নিজৰ মানসিক সংস্কাৰে সেয়া সৃষ্টি কৰে। আমাৰ এই চিন্তাধাৰাই বস্তুবোৰক সুন্দৰ বা কুৎসিত কৰে। সমগ্ৰ সংসাৰখনেই আমাৰ মনৰ মাজত সঠিক দৃষ্টিৰে সকলোবোৰ চাবলৈ শিকা। বহুত সুন্দৰ আৰু ডাঙৰ কথা স্বামী বিবেকানন্দই ইয়াত কৈছে। মই তোমালোকক জাষ্ট সৰু দুটামান এক্সাম্পল দিম তেতিয়া ভালদৰে বুজি পাবা। এবাৰ এখন আশ্ৰমত বহুত শিষ্য আছিলে আৰু গুৰুদেৱে তাত সকলোকে প্ৰশিক্ষণ দিয়ে, ট্ৰেইনিং দিয়ে। তো এবাৰ কি হ'ল, দুজন শিষ্যৰ লগত গুৰুদেৱ, দুজন ভাল শিষ্য আৰু মানে গুৰুদেৱে সিহঁত দুজনৰ লগত ফুৰিবলৈ গ'ল। ফুৰিবলৈ যাওঁতে ৰাস্তাৰে গৈ গৈ কথা পাতি আছে আৰু
আশ্ৰমত গুৰুদেৱে প্ৰতিটো সময়তে সুন্দৰ সুন্দৰ শিক্ষা দি থাকে, নীতি শিক্ষা, সৰুতেও শিক্ষা, কাম কৰোঁতেও শিক্ষা, এনি টাইম শিক্ষা দি থাকে। যেতিয়া সিহঁত ফুৰিবলৈ গ'ল, তাৰপিছত যেতিয়া ফুৰিবলৈ গ'ল, তেওঁলোকে গৈ আছে, দেখিলে ল'ৰা এজনে আম পাৰি আছে, শিলগুটি দলিয়াই আম পাৰি আছে। তো গুৰুদেৱে শিষ্য দুজনক লৈ তাতে ৰখিলে আৰু ক'লে, আচ্ছা চোৱাচোন, তোমালোকৰ সন্মুখত এই দৃশ্যটো যে দেখিছা আৰু কোৱা, তোমালোকে কি শিকিলা, চোৱা ভালদৰে। তাৰপিছত শিষ্য দুজনে চালে, আম পাৰি আছে। আম পৰা ল'ৰাটোৱে বহুত বাৰ শিলগুটি দলিয়াই দলিয়াই আম পাৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে আৰু 10 বাৰ শিলগুটি মাৰিছে, কিন্তু আম সৰা নাই। কিন্তু 10 নম্বৰ বাৰত এটা আম সৰি গ'ল। তেতিয়া গুৰুদেৱে সুধিলে, এতিয়া তোমালোকে কি শিকিলা কোৱা। তাৰপিছত প্ৰথম শিষ্যজনে ক'লে যে গুৰুদেৱ, সেই শিলগুটি যে দলিয়াই আছিলে, 10 বাৰ শিলগুটি মাৰিছে, গছজোপা ইমান বেয়া, গছজোপা ইমান নিৰ্দয়, সেই বেচেৰা ল'ৰাটোৱে 10 বাৰ শিলগুটি মাৰিছে, তথাপিও শেষত তাক এটাহে আম দিছে। গুৰুদেৱে ক'লে ঠিক আছে। দ্বিতীয়জনক সুধিলে, এতিয়া তুমি কোৱা, তুমি কি শিকিলা। তাৰপিছত দ্বিতীয় শিষ্যজনে ক'লে যে গুৰুদেৱ, এই গছজোপা কিমান মহান হয় চাওকচোন, 10 বাৰ শিলৰ কোব খাইছে, তথাপিও গছজোপা ইমানেই দয়ালু যে সেই ল'ৰাটোক এটা আম তথাপিও দিছে। ইমান মাৰ খাইছে, 10 বাৰ কষ্ট পাইছে, তথাপিও এটা আম দিছে। তেতিয়া গুৰুদেৱে ক'লে, গুৰুদেৱে তেতিয়া বুজি পালে যে কোনজন শিষ্য কেনেকুৱা। মানে ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱেই, তেতিয়া গুৰুদেৱে ক'লে যে আমি ঘটনা এটাই ঘটি আছে, আম পৰা ঘটনাই ঘটি আছে, কিন্তু দুইজন শিষ্যৰ বেলেগ বেলেগ দৃষ্টিভংগী, নজৰিয়া अलग अलग है दोनों का। তো যদি আমি তাক পজিটিভলি লওঁ, মানে মোৰ দৃষ্টি যেনেকুৱা, মোৰ চিন্তাসমূহ যেনেকুৱা, মই সেইটোক পজিটিভ দেখিম। আৰু যদি মই নিগেটিভ দেখো, মই যদি নিগেটিভ হওঁ, মোৰ মনত যদি নাকাৰাত্মকতা চলি থাকে, তেতিয়াহ'লে মই তাত ভুলটোহে বিচাৰি উলিয়াম। কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী আছে দেখিবা, কিছুমান মানুহ আছে যে সকলোতে না নিগেটিভ এনেকুৱাই ক'ব, ভাল পইণ্টছ দেখিয়ে নাপায়। তো স্বামী বিবেকানন্দ ইয়াত সেইখিনিকে কৈছে যে আমি যে জগতখন দেখি আছো ন, সেয়া আমাৰ দৃষ্টিৰে দেখি আছো। আচ্ছা, আৰু তোমালোকে মহাভাৰতৰ কথা শুনিছা। মহাভাৰতত কৌৰৱ পাণ্ডৱ আছিলে। তাৰপিছত এবাৰ যুধিষ্ঠিৰ আৰু দুৰ্যোধনক ক'লে যে মোক এখন লিষ্ট বনাই, হেৰিয়ে ক'লে, গুৰুদেৱে ক'লে যে, গুৰুদেৱ কোন আছিলে, দ্ৰোণাচাৰ্য আছিলে। তো তেওঁলোক দুজনক ক'লে, মানে শিক্ষা লৈ থকা সময়ত, যে মোক এখন ভাল মানুহৰ লিষ্ট দিয়া বুলি দুৰ্যোধনক ক'লে। আৰু যুধিষ্ঠিৰক ক'লে যে মোক এখন বেয়া মানুহৰ লিষ্ট দিয়া, তুমি ঘূৰি পকি চোৱা আৰু কোন কোন ভাল আছে তাৰ এখন লিষ্ট দিয়া বুলি দুৰ্যোধনক কৈছে। আৰু যুধিষ্ঠিৰক কৈছে তুমি বেয়া মানুহৰ লিষ্ট দিয়া। দুইজনে গ'ল, গৈ ঘূৰি ঘূৰি বিচাৰি বিচাৰি শেষত লিষ্ট নবনালেই, খালি হাতে উভতি আহিলে। তাৰপিছত সুধিলে, গুৰুদেৱে সুধিলে, ক'ত তোমালোকৰ লিষ্ট। তেতিয়া দুৰ্যোধনে ক'লে, মই এই পৃথিৱীত এজনো ভাল মানুহ বিচাৰি নাপালো, গতিকে মই লিষ্টে নবনালো। আৰু যুধিষ্ঠিৰে ক'লে যে মই এজনো বেয়া মানুহ দেখিয়ে নাপালো, গতিকে মই লিষ্ট কেনেকে বনাও, সকলোৱে ভাল। কিন্তু মানুহখিনিতো একেই, পৃথিৱীত সকলো মানুহ চব একেই আছিলে, কিন্তু তেওঁলোকৰ নিজৰ দৃষ্টিভংগীতহে আছিলে যে এয়া ভাল নে বেয়া। তেওঁ যদি ভাল, তেওঁ গোটেই মানুহখিনিক ভালেই দেখিব, আৰু তেওঁ যদি বেয়া, তেতিয়াহ'লে বেয়াই দেখিব। গতিকে আমাৰ চিন্তাধাৰা যিটো ন, সেইটোৱেহে বস্তুটো ভাল নে বেয়া এইটোক মানে কয়। গতিকে বস্তু যিটো থাকে আমাৰ সন্মুখত, সেইটো এটাই, বা মানুহবিলাক একেই থাকে, আমাৰ দৃষ্টিভংগীটোহে সলনি হয়, বস্তু সলনি নহয়। লাহে লাহে তোমালোকে অনুভৱ কৰিলে গম পাবা, যেতিয়া আমি আনক মৰম দিম, তেতিয়া ঘূৰাই আমি মৰমেই পাম। আৰু যদি আমি আনক বেয়া কথা কওঁ বা বেয়া দৃষ্টিৰে চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমিও সেইখিনিকে পাম, হয়নে? তো সেইকাৰণে আমি কেতিয়াবা আকৌ ভুল ভাবিব পাৰো। কেতিয়াবা ৰাতি আমি গৈ আছো, যেনিবা এডাল ৰছী ৰাস্তাত পৰি আছে, ডাঙৰ শকত ৰছী এডাল ৰাস্তাত পৰি আছে, আমি সেইডালকে সাপ বুলি ভাবিবলৈ ল'ম, হয়নে? কিন্তু সেয়া হৈছে আমাৰ
ইলিউজন মানে হেডালটো সাপ নহয় ৰছিহে কিন্তু আমি সাপৰ ফলত সাপ দেখিলে যি ভয়ৰ সৃষ্টি হয় গোটেইখিনি ভয় আমাৰ তাত সৃষ্টি হৈছে সেইটো কাৰণে আমি প্ৰকৃত মায়াত আবদ্ধ হৈ থাকিব নালাগে মায়া মানে হৈছে ইলিউজন যেটো এক্স্যাক্টলি নহয় হেতুকে আমি হয় বুলি ভাবি থকা আসলতে আনন্দ আৰু পজিটিভিটিৰে গোটেই পৃথিৱীখন ভৰি আছে কিন্তু আমি নাজানো আৰু সেই কাৰণে আমি উল্লুটা মানে তাক বেয়া বুলি দেখিবলৈ লওঁ সেই কাৰণে স্বামী বিবেকানন্দে কৈছে যে সমগ্ৰ গোটেই সংসাৰখন আমাৰ মনৰ মাজত আছে আমি যি দৃষ্টিৰে চাম এয়া আমি দেখিবলৈ পাম গতিকে আমাৰ দৃষ্টিকোণ শুদ্ধ কৰিব লাগিব আৰু দৃষ্টিকোণ শুদ্ধ কেতিয়া হ'ব যেতিয়া আমি আমাৰ জীৱনত কিছুমান ভাল ভাল বস্তুসমূহ আমি স্থাপিত কৰিম যেনেকৈ আমি পঞ্চশীল পাইছিলো ন আত্মসংযম আত্মবিশ্বাস এই গোটেই গুণখিনি যেতিয়া আমাৰ মাজত আহিব তেতিয়া আমাৰ দৃষ্টি অটোমেটিক্যালি ভাল হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া আমি কালি যে কৰিছিলো ধ্যান আমি ধ্যানৰ ফালে আকৌ অকমান অগ্ৰসৰ হ'ম এতিয়া যিদৰে আমি এই স্বামী বিবেকানন্দে ক'লে ন যে আমাৰ দৃষ্টি ভাল কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি গোটেই জগতখনক ভালদৰে দেখিবলৈ পাম গতিকে তাক এটা দৃষ্টিটো ভাল কৰা এটা সকলোতকৈ উত্তম মাধ্যম হৈছে ধ্যান বা মেডিটেশ্যন তো আমি সেই মেডিটেশ্যনৰ এবাৰ অভ্যাস কৰিম হ'ব আটাইয়ে সিধাকে বহি লোৱা সুন্দৰকৈ বহি ল'বা আৰু দুইখন হাত কালি যিদৰে কৈছিলো এখনৰ ওপৰত এনেকে এখন থৈ পেলাই হাত দুখন এনেকে থৈ পিঠি ডিঙি মূৰ পোনাই ৰাখিবা এটো ধ্যান মুদ্ৰা পিঠি ডিঙি মূৰ পোন আৰু গোটেই শৰীৰটো আৰামত ৰাখিবা কমফৰ্টেবলি বহিবা সুখাসন হওক পদ্মাসন বজ্ৰাসন বা অৰ্ধ পদ্মাসন যিকোনো আসনত তোমালোকে আৰামেৰে বহি লোৱা লাহেকৈ দুচকু জপাই লোৱা আমি আমাৰ এই মনটো শান্ত কৰিবলৈ এটা দিশত লৈ যাবলৈ আমি এক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম যাত্ৰা মানে জাৰ্নি এই যাত্ৰাত আনন্দ আছে আৰু শান্তি আছে প্ৰথমতে আমি এতিয়া নিজৰ সোঁনাকটো বন্ধ কৰিম বুঢ়া আঙুলিৰে সোঁহাতৰ বুঢ়া আঙুলিৰে বাওঁ নাকেৰে উশাহ এৰি দিম আৰু উশাহ এৰোতে মনতে 1 পৰা 12 লৈ গণনা কৰিম বাওঁ নাকেৰে একেটা নাকেৰে আমি উশাহ লম 12 লৈ গণনা কৰিম অনামিকা আঙুলিৰে বাওঁ নাকটো বন্ধ কৰি সোঁ নাকেৰে আমি উশাহ এৰি দিম আৰু 12 লৈ গণনা কৰিম একেটা নাকিকাৰে আমি উশাহ লম সোঁ নাকেৰে উশাহ লম 12 লৈ গণনা কৰিম সোঁ হাতৰ বুঢ়া আঙুলিৰে সোঁ নাকটো বন্ধ কৰি বাওঁ নাকেৰে আমি উশাহ এৰি দিম 12 লৈ গণনা কৰিম আকৌ একেটা নাকেৰে আমি উশাহ লম 12 লৈ গণনা কৰিম অনামিকা আঙুলিৰে বাওঁ নাকটো বন্ধ কৰি সোঁ নাকিকাৰে আমি উশাহ এৰি দিম আৰু 12 লৈ গণনা কৰিম পুনৰ আমি একেটা নাকিকাৰে উশাহ লম সোঁ নাকিকাৰে 12 লৈ গণনা কৰিম
বুঢ়া আঙুলিৰে সোঁ নাসিকা বন্ধ কৰি বাওঁ নাসিকাৰে আমি উশাহ এৰি দিম, বাৰলৈ গণনা কৰিম। একেটা নাসিকাৰে আমি উশাহ লম, বাৰলৈ গণনা কৰিম। অনামিকা আঙুলিৰে বাওঁ নাকটো বন্ধ কৰি সোঁ নাসিকাৰে উশাহ এৰি দিম, বাৰলৈ গণনা কৰিম। পুনৰ একেটা নাসিকাৰে আমি উশাহ লম, বাৰলৈ গণনা কৰিম। এতিয়া আমি দুয়োটা নাসিকাৰে উশাহ এৰি দিম, বাৰলৈ গণনা কৰিম। পুনৰ আমি দুয়োটা নাসিকাৰে উশাহ লম আৰু বাৰলৈ মনতে গণিম। দুয়োটা নাসিকাৰে উশাহ এৰি দিম আৰু বাৰলৈ গণনা কৰিম। পুনৰ দুয়োটা নাসিকাৰে আমি উশাহ লম, বাৰলৈ গণনা কৰিম। দুয়োটা নাসিকাৰে উশাহ এৰি দিম আৰু বাৰলৈ গণনা কৰিম। পুনৰ আমি দুয়োটা নাসিকাৰে উশাহ লম, বাৰলৈ গণনা কৰিম। দুয়োটা নাসিকাৰে উশাহ এৰি দিম। এতিয়া আমি স্বাভাৱিকভাৱে উশাহ নিশাহ লৈ আছো আৰু এৰি আছো। মোৰ সম্পূৰ্ণ ধ্যান উশাহ আৰু নিশাহৰ ওপৰত। নাসিকাৰে বতাহ সোমাই আছে, নাসিকাৰে গৰম বতাহ বাহিৰলৈ ওলাই আছে, তাক অনুভৱ কৰিম। উশাহ লওঁতে শীতল ঠাণ্ডা বতাহ ভিতৰলৈ গৈছে, নিশাহত গৰম বতাহ বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে। এতিয়া আমি এক ধ্যান যাত্ৰাৰ আৰম্ভ কৰিম। মই মোৰ সজাগতা বা ধ্যান বাওঁ ভৰিৰ বুঢ়া আঙুলিলৈ লৈ যাম। মোৰ সম্পূৰ্ণ ধ্যান বাওঁ ভৰিৰ বুঢ়া আঙুলিত। বাওঁ ভৰিৰ বুঢ়া আঙুলিৰ পৰা মই মোৰ ধ্যান বাওঁ গুৰুহালৈ লৈ যাম। বাওঁ গুৰুহাৰ পৰা মই মোৰ সজাগতা বা ধ্যান বাওঁ আঁঠুলৈ লৈ যাম। বাওঁ আঁঠুৰ পৰা মই মোৰ ধ্যান মোৰ উৰুৰ শেষ ভাগলৈকে লৈ যাম। আৰু মেৰুদণ্ডৰে সৈতে মই মোৰ সজাগতাক নি হৃদয় আকাশত বা হৃদয় চক্ৰত স্থাপিত কৰিম। মনৰ এইখিনি ভাগ ইয়াতে এৰি থৈ এতিয়া মই মোৰ সজাগতা সোঁ ভৰিৰ বুঢ়া আঙুলিলৈ লৈ যাম।
মোৰ সম্পূৰ্ণ ধ্যান সোঁ ভৰিৰ বুঢ়া আঙুলিত নিবদ্ধ সোঁ ভৰিৰ বুঢ়া আঙুলিৰ পৰা মই মোৰ ধ্যান সোঁ গুৰুহালৈ লৈ যাম मैं अपना ध्यान दाहिने एड़ी की तरफ ले आता हूँ সোঁ গুৰুহাৰ পৰা মই মোৰ ধ্যান সোঁ আঁঠুলৈ লৈ যাম दाहिने एड़ी से मैं अपना ध्यान दाहिना घुटने की तरफ ले जा रहा हूँ সোঁ আঁঠুৰ পৰা মই মোৰ ধ্যান সোঁ উৰুৰ শেষ ভাগলৈকে লৈ যাম অন্তিম ভাগলৈকে পুনৰ ৰাজহাড়ৰে সৈতে মেৰুদণ্ডৰে সৈতে মই মোৰ সজাগতাখিনি হৃদয় চক্ৰত নি স্থাপন কৰিম মনৰ এইখিনি ভাগ ইয়াতে এৰি এতিয়া মই মোৰ সজাগতাক বাওঁ হাতৰ মধ্যমা আঙুলিলৈ লৈ যাম বাওঁ হাতৰ মধ্যমা আঙুলিৰ পৰা মই মোৰ সজাগতাক বাওঁ কিলাকুটিলৈ লৈ যাম বাওঁ কিলাকুটিৰ পৰা মই মোৰ ধ্যান বাওঁ কান্ধলৈ লৈ যাম এতিয়া মই মোৰ ধ্যান মেৰুদণ্ডৰে সৈতে আনি হৃদয় চক্ৰত স্থাপন কৰিম মনৰ এইখিনি ভাগক আমি ইয়াতে এৰি থৈ এইবাৰ মই মোৰ সজাগতা সোঁ হাতৰ মধ্যমা আঙুলিলৈ লৈ যাম সোঁ হাতৰ মধ্যমা আঙুলিৰ পৰা মই মোৰ ধ্যান সোঁ কিলাকুটিলৈ লৈ যাম সোঁ কিলাকুটিৰ পৰা মই মোৰ ধ্যান এতিয়া সোঁ কান্ধলৈকে লৈ যাম আৰু মেৰুদণ্ডৰ মাজেৰে মই মোৰ সজাগতাখিনিক এইবাৰ নি হৃদয় আকাশত হৃদয় চক্ৰত স্থাপন কৰিম মনৰ এইখিনি ভাগ ইয়াতে সামৰি থৈ মই মোৰ সজাগতা এতিয়া মূৰৰ একেবাৰে ওপৰৰ অংশত সোঁ মাজত লৈ যাম মোৰ সম্পূৰ্ণ ধ্যান মূৰৰ ওপৰৰ অংশত নিবদ্ধ আছে আৰু ডিঙিৰে সৈতে মই মোৰ ধ্যান বা সজাগতাক হৃদয় আকাশত বা হৃদয় চক্ৰত আনি স্থাপন কৰিম এইদৰে আমি আমাৰ মনটোক সকলো দিশৰে পৰা আনি পেলাই হৃদয় আকাশত এটা দিশত আমি এটা ঠাইত স্থাপন কৰিছো এতিয়া আমি
সূৰ্যোদয়ৰ কল্পনা কৰিম। सूर्योदय का कल्पना करेंगे। পূব দিশত সূৰ্য উদয় হৈছে। পূব আকাশত ৰঙা সূৰুজ ৰঙা বেলি ভুমুকি মাৰিছে। সূৰ্যৰ ৰক্তিম আভাৰে ৰঙা কিৰণেৰে গোটেই আকাশ বিয়পি পৰিছে। সেই ৰঙা আভাখিনিয়ে গোটেই আন্ধাৰসমূহ নাইকিয়া কৰি দিছে। এতিয়া আমি সেই সূৰ্যৰ চকৰিটো গোল সূৰুজটো আনি আমাৰ হৃদয় আকাশত হৃদয়ৰ মাজত স্থাপন কৰিম ধ্যানৰ মাধ্যমেৰে। সূৰ্যৰ চকৰিটো আনি মই মোৰ হৃদয় চক্ৰত স্থাপন কৰিছো। সূৰ্যৰ ৰশ্মিয়ে মোৰ গোটেই শৰীৰটো ভৰাই দিছে। গোটেই শৰীৰ জুৰি সূৰ্যৰ ৰশ্মি আলোকিত হৈছে। মই যিটো কোঠাত বহি আছো এই গোটেই কোঠাটোত সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰে উদ্ভাসিত হৈ পৰিছে। মোৰ সম্পূৰ্ণ নকাৰাত্মক ভাৱসমূহ আঁতৰি গৈছে। মোৰ মনৰ ভিতৰত যিমান আখৰিক শক্তি আছে সকলোকে নাশ কৰি দিছে। মোৰ সমগ্ৰ শৰীৰ আৰু এই কোঠাটো সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰে আলোকিত হৈ পৰিছে। আমি কিছুক্ষণ এই অৱস্থাতে ৰম। कुछ देर हम इसी अवस्था में रुकेंगे। আমি ধ্যানক কেতিয়াও এই অৱস্থাতে এৰি নিদিও। মোৰ কোঠাটোত ভৰি থকা সূৰ্যৰ ৰশ্মিসমূহ এতিয়া মই মোৰ শৰীৰলৈ উভতাই আনিম। শৰীৰৰ পৰা গোটেই ৰশ্মিসমূহ মই আনি হৃদয় চকৰিত বা হৃদয় আকাশলৈ ঘূৰাই আনিম। আমি পুনৰ গোটেই ৰশ্মিসমূহ উভতাই আনিলো। এতিয়া আমি আমাৰ হৃদয়ত থকা সেই সূৰ্যৰ চকৰিটোক আমি পুনৰ আকাশলৈ উভতাই পঠিয়াম। মোৰ হৃদয়ৰ পৰা সূৰ্যৰ সেই চকৰিটো সেই গোলাকাৰটো লাহে লাহে গৈ
আকাশত স্থাপিত হৈছে। এতিয়া আমি লাহে লাহে দুই হাতৰ তলুৱাখন বহিম, हथेलियों को धीरे धीरे रगड़ेंगे और है गरम तापनी गुस्सों को तालफुले अनुभव करेंगे। इस गर्माहट को हम अपनी आंखों पर हल्के से लगाएंगे, उसे महसूस करेंगे और सबको मिले। अच्छा, আটাই নিজৰ নিজৰ সময়লৈ লাহে লাহে চকু মেলা। আটাই কৰিলানে ধ্যান? ভাল লাগিছে? एक बार माइक खोलते हैं। अच्छा ये बताओ कौन कौन सोया था? कौन कौन सोया था बताओ। किसने किसने अपनी नींद पूरी करी आंख बंद करके? किसने करी? माइक ओपन है। हाँ मैंने क्वेश्चन पिसत क्वेश्चन है। बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा लगा। ओके तो अभी क्या करने वाले हैं अमल सर? क्वेश्चन तो हम बाद में लेंगे, अमल सर बताएंगे। हाँ क्वेश्चन आंसर আমি কৰিম ডেফিনেটলি। তোমালোকে নিজৰ মাইন্ডত কোৱেশ্চনছ বিলাক এতিয়া থৈ দিয়া। কোনোবাই টোপনি আছিলে নেকি ধ্যানৰ সময়ত? নাই বুলি ধৰি লৈছো। প্ৰথম অৱস্থাত কেতিয়াবা টোপনি আহিব পাৰে, কোনো ডাঙৰ কথা নহয়। আমি মানুহ হয়, টোপনি আহি যাব পাৰে। টোপনি আহিলে আমি আকৌ সজাগ হ'ব লাগে, কাৰণ আমি সজাগ হৈ যেতিয়া আমি আমাৰ সন্মুখৰ পৃথিৱীখন সন্মুখৰ মানুহবোৰক চাম, তেতিয়া আমাৰ দৃষ্টিভংগী শুদ্ধ হ'ব, আমি সকলোকে ভাল পাবলৈ শিকিম। আচ্ছা আজি এতিয়া সাৰপ্ৰাইজৰ টাইম। এতিয়া শান্তনু ছাৰে তোমালোকক সাৰপ্ৰাইজ দিব। আমি কালি কৈছিলো বাৰু। वही शांतनु जी वो सरप्राइज क्या है? सरप्राइज मैं बोलूंगा नहीं, मैं सरप्राइज दिखाऊंगा, ठीक है? सो बी रेडी। ओके अभी आपके सामने एक सरप्राइज आएगा थोड़ी देर के लिए, उसके बाद वो सरप्राइज चला जाएगा, फिर एक सस्पेंस दे देगा आपको अब क्लाइमैक्स में क्या होगा, जैसे मूवी में होता है ना वैसा हो जाएगा। सो ध्यान से देखना, और ध्यान से देखना इन द सेंस मजे से देखना। हाँ जैसे मूवी देखने में मजे लेते हो ना, वैसे ये भी एक मूवी है, इसको भी देखने में मजे लेना बहुत अच्छे से। और फिर मैं ना एंड में क्वेश्चन पूछूंगा कि इस मूवी में जो इंसान जो कैरेक्टर है वो कौन है। हाँ ठीक है ओके। तो बहुत ध्यान से और बहुत मजे से देखो, मस्ती के साथ, ठीक है? चलो मैं अभी प्ले करता हूँ आप सबके लिए। बिले के कारनामों ने जॉय और उसके दोस्तों को बिले की तरह बनने की सीख दी। जानते हो बिले कौन है? जब भारत अंग्रेजों के अधीन था, आया एक चंचल तूफान जिसे रोक पाना मुश्किल था, और इस तूफान का नाम था माफ कीजिएगा, बस मां की गुस्से भरी आवाज ही इसे रोक पाती। और एक लोटा पानी उसे कुछ पल के लिए शांत कर देता। तरीका थोड़ा उल्टा जरूर था। वो यारों का यार था। खेल कूद मस्ती मजाक में सबसे ऊपर। पर जो ऊपर जाता है उसे नीचे भी आना पड़ता है। लेकिन सबसे जरूरी बात, पढ़ाई के वक्त ध्यान बराबर। पूरे भारत पर अधिकार करने के लिए
सम्राट अशोक ने एक के बाद एक कई राज्यों पर आक्रमण किया और हर बार सामने वाले राजा ने पराजित होकर उनके सामने आत्मसमर्पण किया, एक बिल्ली भीगी बिल्ली बनकर। और 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण का फैसला किया और हर युद्ध में विजयी होने वाले सम्राट अशोक के सामने कलिंग को भी मिली एक शर्मनाक हार। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध कब किया? नहीं पता। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध कब किया? नहीं पता। नहीं पता। ए फॉर अशोक। ठीक है, पास। ओहो, मास्टर बिले मेरी कक्षा में सो रहे हैं कल की तरह या यूं कहूं हमेशा की तरह। बताओ, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध कब किया? आज मैंने सम्राट अशोक के बारे में क्या क्या पढ़ाया, एक एक करके मुझे सब बताओ। जानता था तुम मेरी कक्षा में रोज सोते हो, पर आज तुम्हें मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया। ओह, सोचना पड़ेगा कि तुम्हें किस तरह की सजा दूं। पूरे भारत पर अधिकार करने के लिए सम्राट अशोक ने एक के बाद एक कई राज्यों पर आक्रमण किया और हर बार सामने वाले राजा ने पराजित होकर उनके सामने आत्मसमर्पण किया, एक भीगी बिल्ली बनकर। 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण का फैसला किया और हर युद्ध में विजय होने वाले सम्राट अशोक के सामने कलिंग को भी मिली एक शर्मनाक हार। बहुत अच्छे मास्टर बिले, तो तुम ये पाठ घर से रट के आए थे? नहीं मास्टर जी, मैं ध्यान से सुन रहा था आपने जो अभी अभी पढ़ाया। और वो तुम्हें पूरा का पूरा याद रहा? ठीक है, तो अब तुम्हें कुछ नया पढ़ाते हैं। अब इसे याद करके बताओ पूरा का पूरा। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना ही योग बैराग में। अब तुम बोलो। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना ही योग बैराग में। हाँ? 12, 17, 21, 5 लाल नीला पीला बैंगनी, मीठा आलू खीरा टमाटर, खरगोश बकरा गुलाब जूही, चंपा चमेली गाय घोड़ा कबूतर कुत्ता गिलहरी पहाड़, झरना नदी घाटी पत्थर समुद्र राष्ट्र महाद्वीप पृथ्वी सौरमंडल आकाश गंगा नक्षत्र ब्रह्मांड। बस इतना ही। 12, 17, 21, 5 लाल नीला पीला बैंगनी, मीठा आलू खीरा टमाटर, खरगोश बकरा गुलाब जूही, चंपा चमेली गाय घोड़ा कबूतर कुत्ता गिलहरी पहाड़, झरना नदी घाटी पत्थर समुद्र राष्ट्र महाद्वीप पृथ्वी सौरमंडल आकाश गंगा नक्षत्र ब्रह्मांड। बस इतना ही। मुझे लगा बिले ये बोलना भूल गया। मेरा विद्यार्थी अद्भुत विलक्षण चमत्कारी। मेरे मास्टर जी अद्भुत विलक्षण चमत्कारी। वेल, वो थे बिले के टीचर और ये है बिले का स्टूडेंट।
और ये चला जॉय। ये है इस छोटे से शहर का बड़ा सा मेला जिसका सभी को इंतजार रहता है, खासकर जॉय को, जिसका सपना है कि वो इस मेले में वायलिन बजाए। यही नहीं, एक और छोटी सी इच्छा है उसकी। शानदार, अद्भुत, चमत्कार, चमत्कार। ऐसी तारीफ की, पर ये एक सपना है और असलियत है ये। देखो मेरा कमाल। वो आ गया। आगे, जॉय फिर से आ गया वायलिन के साथ। जॉय का चमत्कार। वेल, कुछ ऐसी ही तबाही मचाता है जॉय अपनी वायलिन बजाकर। अब मुझे बस यही देखना है कि क्या बिले उससे करवा पाएगा कोई चमत्कार। जून, सुना तुमने? हाँ, बिल्कुल बिले की तरह था ना? बहुत खूब। अरे वाह, तुम्हें एक नई साइकिल मिली। बहुत खूब। क्या मतलब बहुत खूब? वैसे ये नई साइकिल तुम्हें किसने दी? बहुत खूब। हाँ, बहुत खूब ने साइकिल दी? बहुत खूब। तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? मैं क्या कह रहा हूँ कुछ सुन भी रही हो? बहुत खूब। तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या है? ये वो होता है ना, ईयर प्लग्स। मेरे ईयर प्लग्स रुई के दो छोटे से टुकड़े जो हमें शोर से बचाते हैं। देखो जॉय, हम अच्छे दोस्त हैं और तुम्हारी वायलिन की आवाज किसी को भी बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, तो इसलिए तुम मुझे वो उटपटांग जवाब दे रही थी। तो तुम्हें भी मेरी वायलिन की आवाज बर्दाश्त नहीं होती ना? नहीं, मेरा मतलब। तुम्हारा मतलब? हाँ, नहीं, मैं मतलब झूठ मेरी बात सुनो। रुको, तुम दोनों बिल्ले और स्वर्णमोर के जैसे लड़ रहे हो।
हाँ, सही कह रहे हो। तुम्हें पता है बिल्ली ने उस दिन क्या किया था? वो तो बिल्ली ने किया, पर तुम क्या करोगे? मैं? हाँ? जॉय! वो मेरी नई साइकिल है। उधार ले रही हूँ। ये फिर इसे भी ले जाओ। ठीक है, क्या पता काम आ जाए। अब बताओ फिर क्या हुआ? ये और फिर सीढ़ियाँ, पहले सीढ़ियों से निकल गया। अब कहाँ गया होगा? वो रहा। अच्छा, वहाँ से जाने का इरादा है तुम्हारा। तो अब ये बताने का समय है कि स्वर्णमयी ने क्या किया था। पीछा छूटा। कैसे हो जॉय? बिल्ली ने फिर क्या किया? हाँ, बिल्ली ने फिर ये किया। वैसे कहानी अभी पूरी नहीं हुई जॉय। पता है, पर क्या तुम्हें पता है कि बिल्ली को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसी बातें तो देख लेंगे। वो मेरा चाहता है। शुक्रिया टॉफी। लगता है बिल्ली को उसके टक्कर का कोई मिल गया। आज स्वर्णमयी से बचना मुश्किल है। बिल्ली का बहादुर सिपाही फंस गया है। अब चलो भी जॉय, मेरी साइकिल वापस करने में ही समझदारी है। आगे तो तुम जा नहीं सकते। एक बात कहूं? बिल्ली के बहादुर सिपाही को कोई नहीं रोक सकता। जॉय, मत जाओ। तुम्हें पता है हम बाहर नहीं जा सकते। वापस आ जाओ जॉय, वापस आ जाओ। तुम भूत बंगले में जा रहे हो। अब पकड़ के दिखाओ। आओ आओ। गंदे, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अब आके मुझे पकड़ो जून। इसी वक्त वापस आ जाओ, वरना मैं तुम्हारे बाबा को बता दूंगी। तुम हार गई, मैं जीत गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। जॉय, तुम्हें पता है वहाँ क्या होगा? वो शैतानी हवा चलेगी, भूतों का संगीत बजेगा और भूत तुम्हारा सर फोड़ देंगे। मैं डर रहा हूँ जून। जॉय, अब भी वक्त है, वापस आ जाओ। बाय डरपोक। जाओ, जाके घर में छुप जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। तो जाओ ना, तुम्हें रोका किसने है? मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुन रही। तो तुम हो वो भूत बंगला जिससे सब लोग डरते हैं।
रुको, अभी बताता हूँ। आज तुम मुझसे नहीं बचोगी। लीला, 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 कब तक छुपोगी मुझसे? हुई? अरे कहाँ गई ये मोटी हथनी? मैंने उसे इसी तरफ आते देखा। हाँ? हाँ? Yikes! बिल्कुल सही जगह पे गिरी हो तुम। ये तो और भी अच्छा हुआ। ओह, मास्टर जी से मिलने जाना था। अगली बार तुम्हें इससे बड़ी मुश्किल में डालूंगा। रोती रहो अब, मैं तो तुमसे दूर चला। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? उसे मदद की जरूरत है। जॉय, रुक जाओ, जाओ और जाकर लीला की मदद करो। हाँ? हाँ। ओह मेरे नन्हे दोस्त, घबराओ मत, थोड़ी देर में तुम अपने घर पहुंच जाओगे। जाओ जाओ अपने दोस्तों के पास। ओह, तुम आखिरी होगे। तुम डर क्यों रहे हो? जॉय, लगता है दिन अच्छा नहीं था। फिर से वायलिन? पहले वायलिन, फिर जून, और फिर वो भूत, कुछ नहीं, और इसके बाद वो लीला। पर आज लीला को अच्छी सजा मिली। तुम्हें उसकी मदद करनी थी। हाँ, मैंने मदद की, उसे खींचकर बाहर निकाला। बहुत अच्छे, तुमने वही किया जो बिले करता। वैसे प्रतियोगिता के लिए तुम्हारी वायलिन प्रैक्टिस कैसी चल रही है? मुझे नहीं लगता कि ये मुझसे होगा। क्या बिले ऐसा करता? पर मैं बिले नहीं हूँ। तुम बिल्कुल बिले जैसे हो। सच? आपने उस पहाड़ों के पार वाले भूत बंगले के बारे में सुना है? मैं आज वहाँ गया था और अब जानते हो क्या हुआ? हवा चलने लगी और वहाँ रखे सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अपने आप बजने लगे। क्या कोई भूत उन्हें बजाता है? इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। काफी देर हो गई है, तुम्हें चलना चाहिए। एक मिनट,
मैं जून के लिए कुछ लाया हूँ, उसे दे देना। ये बिले की कहानियाँ हैं। उसे ही क्यों? क्योंकि इससे पहले मैंने तुम्हें दी थी, तो इस बार उसकी बारी। शुक्रिया मास्टर जी, चलता हूँ। घर आ गए। हाँ। हाँ? मेरा सर छोड़ो। जॉय, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। ये मजाक नहीं था, मैं बुरा सपना देख रहा था। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें। आज से तुम्हारी मेरी कट्टी। अपनी साइकिल लेकर जा रही हूँ। ठीक है, तो तुम्हें मास्टर जी का दिया तोहफा भी नहीं मिलेगा। एक नई किताब है बिले की। बिले? अब सुनो। बसंत का बहुत ही खूबसूरत मौसम था। फूलों से पेड़ लदे हुए थे और टहनियाँ हवा में झूल रही थी। झूलाते रहो। ये तो बहुत बढ़िया है। फूल फूल बरस रहे हैं आसमान से। मेरे सारे के सारे फूल बर्बाद हो रहे हैं। बच्चों, 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 तुम्हें इस पेड़ पे नहीं चढ़ना चाहिए। नीचे उतरो, नीचे उतरो जल्दी से। इस पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ना चाहिए दादाजी? ओह, तो क्या तुम दोनों ने सुना नहीं है भूतों के राजा के बारे में, जो इसी पेड़ में रहता है? भूतों का राजा? वो डरावना है। हाँ, वो बहुत डरावना है। ये लंबी लंबी उंगलियां, नोकीले दांत, कभी कभी तो वो पेड़ की तरह लंबा हो जाता है और उसकी भयानक परछाई जमीन पर पड़ती है। और कभी कभी वो सांप की तरह अपने शिकार को जकड़ लेता है। उसके बाद वो उनको लपेटकर बड़ी बेरहमी से उनका सर उल्टा घुमा देता है। और वो इस पेड़ पे रहता है? हाँ, इसीलिए तुम बच्चों को इस पेड़ पर कभी भी नहीं चढ़ना चाहिए, नहीं तो जिंदगी भर तुम दोनों उल्टा सर लेकर घूमते रहोगे। अब ये पेड़ पे नहीं चढ़ेंगे। लेकिन चलो चलो हरी, फिर से झूलते हैं। क्या कर रहे हो? दादाजी ने क्या कहा सुना नहीं? पेड़ पर भूतों का राजा रहता है। तुम्हारा सिर उल्टा घुमा देगा। बेवकूफों जैसी बात मत करो, कोई भूत नहीं है उस पेड़ पर। तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? जरा सोचो हरी, अगर यहाँ भूतों का राजा रहता और इस पेड़ पर चढ़ने वालों का सर घुमा देता, तो मेरा सर तो कब का उल्टा हो चुका होता। तुम तो जानते हो, मैं इस पेड़ पर पहले भी चढ़ चुका हूँ। हाँ, बिल्कुल सही। तुम्हारा सिर तो उल्टा नहीं हुआ। हाँ, दादाजी हमें इस पेड़ से दूर रखना चाहते थे। बस किसी बात पर तब तक भरोसा मत करो जब तक तुम उसे परख ना लो। हाँ, इसलिए वो हमें डराना चाहते थे। सही कहा। अब चलो आओ, तुम्हें कुछ नया दिखाता हूँ। और इस तरह बिल्ली ने ये साबित किया कि हमें डरना नहीं चाहिए, हमें सवाल करना चाहिए ताकि सच का पता चले। और किसी भी बात पर तब तक भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक वह सच्ची साबित ना हो। जॉय, अपने सर पर जोर डालोगे तो जवाब जरूर मिल जाएगा। अरे हाँ, मैं ये बात कैसे भूल गया। क्या? अब मेरा सर। ये क्या बोल रहे हो? जरूर तुमने कुछ गड़बड़ की है। मुझे बताओ अभी। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें रास्ते में बताता हूँ।
जून, लोग जो भूत बंगले के बारे में बात करते हैं वो सच है। सच में हम वहाँ चलिए। ओके, अभी मैंने एक सस्पेंस तो छोड़ दिया है। क्या बिले ने जॉय की मदद की? क्या जून और जॉय पता कर पाए कि उस बंगले में भूत है या कुछ और है? क्या जॉय वायलिन बजा पाया? ढेर सारे क्वेश्चन हैं? तो अभी तक मूवी अच्छी लगी, मजा आया? अभी मैं सबके माइक ऑन कर। अभी तक मूवी अच्छी लगी सबको? कैसा अभी मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है? अभी मेरा एक क्वेश्चन है। बहुत अच्छी लगी। ओके, अभी मैं सारे क्वेश्चन लूंगा, लेकिन पहले मेरा क्वेश्चन सुनो, ठीक है? मेरा क्वेश्चन क्या है? अभी बिले ने ना एक लास्ट में मूवी में हमने एक स्टोरी देखी, बिले ने क्या बोला था सबसे आखिरी में? अभी बिले ने क्या बोल के गया आपसे, कौन बताएगा? तब बिले अपने दोस्त के साथ पेड़ पे था तो उसने सबसे आखिरी में क्या बोला? कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा? अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी एक को बोलता हूँ। ओके, यशश्री। हमें किसी बात पर तब तक भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक हम उसे परख ना ले। हाँ, हमें किसी बात पर तब तक भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक हम उसको परख ना ले। कैसे परख ना ले? आज का देखो, हमने स्वामी जी का वाणी देखा था ना, उसमें लिखा था कि ये जो संसार है वो हमारे मन के ऊपर है। अगर हम इसको अच्छा देखना चाहेंगे तो अच्छा देखेंगे, बुरा देखना चाहेंगे तो बुरा देखेंगे। अमर सर ने भी आपको युधिष्ठिर और दुर्योधन की कहानी सुनाई। तो हमें भी किसी भी बात पर तब तक विश्वास नहीं करना है जब तक हम उसे परख नहीं लेते हैं। अब परख कैसे नहीं लेते हैं? आप सोचो कि आपको पहाड़ पर चढ़ना है किसी पे, तो अगर आप पहले ही पहाड़ पे चढ़ने से डर जाओगे तो क्या आप पहाड़ की ऊंचाई तक पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। हमने पहले ही अपने मन में बना लिया एक बात कि नहीं, मैं पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे, आप धीरे धीरे पहाड़ पर, जरूरी नहीं आप एक ही दिन में पूरे पहाड़ पर चढ़ो, शायद आप थोड़ी दूर पे जाओ, फिर वहां पर रुको, फिर चढ़ो। उससे क्या होगा? आप उस चीज को परखोगे कि मैं पहाड़ पर चढ़ सकता हूँ या नहीं चढ़ सकता हूँ। ठीक है? तो बिले की ये बात सबको समझ में आई। अब बिले ने एक चीज देखो, बिले बहुत अच्छी चीजें करता था। बिले क्या करता था? मस्ती भी करता था और पढ़ाई पर ध्यान भी देता था, दोनों चीजें करता था। लेकिन दोनों के लिए उसका अलग अलग समय था। वो भी हमारे जैसे है और हम भी उसके जैसे हैं। हम भी मस्ती करते हैं, वो भी मस्ती करता है, वो भी पढ़ता है और आप लोग भी पढ़ते हो, ठीक है? लेकिन वो किसी भी चीज को ना ऐसे वो नहीं करता है, क्या कहते हैं उसको, निग्लेक्ट नहीं करता, मतलब किसी चीज को कम नहीं आंकता है। मतलब वो अरे मैं मजे ही करता रहूंगा, मजे ही करता रहूंगा, पढ़ाई नहीं करूंगा, या नहीं मैं पढ़ाई करता रहूंगा, पढ़ाई करता रहूंगा, मैं मजे नहीं करूंगा। नहीं, सारी चीजों को बैलेंस करके चलता है। तो जब हम इस तरह से बैलेंस करके चलेंगे, इस तरह से प्रैक्टिस करके चलेंगे, तो अमर सर ने आपको बताया था ना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास। सो इस तरह से फिर जो बिले बार बार हेल्प करने आ रहा था ना जॉय की, तो क्या पता बिले आपकी भी हेल्प करने आ जाए। किसको किसको लगता है अच्छा बिले आपकी हेल्प करने आ सकता है? कौन कौन है? रेज योर हैंड। किसको किसको लगता है बिले आपकी हेल्प करने आ सकता है? ओके ओके, ढेर सारे लोग हैं भाई। 38, 39, 40, 46, 47, 52, 54, 55, 6, 7, 8, 9। ओहो, बहुत सारे लोग हैं। सबको लगता है ना बिले उनकी हेल्प करने आ सकता है। अच्छा, तो बिले उनकी हेल्प करने बिल्कुल आएगा, लेकिन बिले को जानना भी पड़ेगा, बिले को समझना भी पड़ेगा, और ये भी जानना पड़ेगा कि बिले कौन है। आई थिंक आप लोग जान गए होंगे ना बिले कौन है। कौन कौन जानता है बिले कौन है? जस्ट अभी रुको, हाँ अभी रेज करो हैंड, कौन कौन जानता है बिले कौन है? ओके, काफी लोग जानते हैं, लेकिन मैं आज किसी से पूछूंगा नहीं, मैं कल ही पूछूंगा, ठीक है? बट फिर भी मैं हैंड रेज से देख सकता हूँ। हाँ, काफी लोग जानते हैं कि बिले कौन था। तो
इस बिले की जर्नी को हम कल जरूर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और तो ये जर्नी जो आगे बढ़ेगी इसको कोई मिस नहीं करेगा। और पहले तो सब लोग कैमरे ऑन करो भाई, मुझे सुंदर सुंदर चेहरे नहीं दिख रहे हैं। हाँ सही प्रिया, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं आपका आंसर। ओके वेरी गुड। अच्छा, अभी किसी को भी क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, और जो बिले वाली जर्नी है हम कल इसको फिर से आगे बढ़ाएंगे, तो सुबह की क्लास कोई नहीं मिस करेगा, ध्यान से। हाँ बिल्कुल ठीक। चलो, किसका किसका क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन हम लेंगे। ओके ओके, आज मैं ना पहले उनसे क्वेश्चन लूंगा जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया है। आज मैं थोड़ा उल्टा करूंगा, ठीक है। जिन्होंने हैंड रेज किया है उनसे तो लूंगा, लेकिन उनसे भी लूंगा जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया है। ऐसा तो हो नहीं सकता इसको कुछ नहीं पूछना हो। पहला मैं नाम लूंगा, हाँ ठीक है। ओके, मैं नाम ले रहा हूँ ईमान, ईमान जे प्रियम। बताओ, आप तो मुझे दिखते ही नहीं हो, कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो? कैमरा ऑन है आपका, बोलो भी तो कुछ। ईमान, ओपन योर माइक। अरे ईमान, मैंने ईमान को देख लिया है, लेकिन ईमान माइक नहीं खोल रहा है। एक बार फिर से, ईमान ओपन योर माइक। ओके डोंट वरी, कोई बात। हाँ ईमान ने खोल लिया अपना माइक। कहाँ है ईमान? कैसा लगा ईमान, बताओ तो। अरे और कोई क्वेश्चन हो तो पूछो भी, बोलो। इमन इमन खुदा। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, लेकिन आवाज नहीं आ रहा आपका बेटा। ओके कोई बात नहीं, आप लिख सकते हो मुझे क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। कोई जो लोग कैमरे के पीछे बैठ के रहते हैं ना, वो प्लीज आगे आया करो। बहुत सारे लोग देखो, बच्चे धीरे धीरे करके आगे आ रहे हैं ना। आप यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हो, ठीक है। तो एंजॉय करना कैसे होगा, जब हम बीच में कन्वर्सेशन करेंगे, बातें करेंगे, और बातें ही नहीं होंगी तो फिर एंजॉय कैसे होगा। तो शेयर करना भी जरूरी है ना कोई चीजें। चलो अभी मैं क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। ओके निखिल। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? मेरा नाम चांदनू है। आपका बर्थडे कब आता है? मेरा बर्थडे मैं अपना बर्थडे नहीं बताता किसी। उसके लिए थोड़ा और आगे आना पड़ेगा, जब हम रोज और मिलने लगेंगे ना, फिर मैं बर्थडे बताऊंगा, ठीक है। आपका कितना ईयर्स है? वो भी नहीं बताऊंगा मैं वो भी सस्पेंस है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? नहीं सर। ओके चलो नेक्स्ट पे जाते हैं अभी। गुंजन, गुंजन सारिया। ओपन योर माइक बेटा। अरे माइक ओपन करो, बंद हो गया। फिर बंद हो गया। ओपन ओपन। ओके तब तक हम दूसरे पे जाते हैं। कहाँ गया? अरे उपस्या। हाँ सर। क्या? सर बिले कैसे इतना चीज याद कर सकता था? बिले कैसा इतना चीज याद कर सकता था? बिले ने ना अपना माइंड, जो मंकी माइंड वाला कल हमने देखा था ना, मंकी माइंड वाला बानी बताया था अमल सर ने। हाँ तो बिले ने ना, और फिर अमल सर ने आपको प्रैक्टिस की बात भी बताई थी। हाँ
तो बिले ना इतने अच्छे से चीजें कैसे याद कर सकता था, क्योंकि वो प्रैक्टिस करता था। किस चीज की प्रैक्टिस करता था पता है? वो अपने माइंड को स्ट्रांग करने की प्रैक्टिस करता था। वो कैसे जो उसके सामने हर्डल्स आएंगी या दुविधाएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, उसका सामना कैसे करेगा। आपने देखा ना, जब उसके सर ने पूछा, वो तो बड़ा आंख बंद करके ऐसे बड़ा हुआ था। उसे क्या वो आपको सोच सकते हैं कि उसे कुछ सुनाई नहीं दिया होगा, लेकिन उसने अपना माइंड इतना स्ट्रांग किया प्रैक्टिस, डे बाय डे प्रैक्टिस करके। अपार्ट फ्रॉम दैट वो गेम भी खेलता था, वो मजे भी करता था, लेकिन वो अपना फोकस बड़ा अच्छा रखता था, ध्यान बहुत अच्छा रखता था। हाँ, जिससे कि वो ये सारा इतना अच्छे से बोल पाता था, उसका माइंड इतना स्ट्रांग था। ओके भूपश्य? ठीक है सर। ओके ओके, मोनिदिशा? Yes, sir. Sir, why did the teacher ask so many questions to Billy? ओके, वो टीचर ना बिले का एग्जाम ले रहे थे एक्चुअली में। देखा ना हमने स्टार्टिंग में, बिले आंख बंद करके ऐसे लेटा हुआ, तो ही इज टेकिंग एग्जाम। बिले का वो एग्जाम ले रहे थे कि उसे कुछ याद भी आया नहीं। वो बिले को तो ऐसे समझ रहे थे कि नहीं, इसे कुछ नहीं सुनाई दिया, इसने कुछ नहीं याद किया है, इसे कुछ नहीं समझ, इसलिए उसका एग्जाम ले रहे थे, जानना चाह रहे थे। ओके ओके, यशवी? सर, जब वो बिले को जब वो दादाजी ने इतना डराया, तब बिले क्यों नहीं डरा? बिले इसलिए नहीं डरा कि बिले ने तो देखो खुद आंसर नहीं दिया ना, उसका उस बात का आंसर दिया था कि किसी भी बात पर तब तक भरोसा नहीं करो जब तक उस बात को परख नहीं लो, खुद से नहीं चेक कर लो। ठीक है, सिंपल। ओके ओके, परिधि 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 परिधि। सर, जो बिले का बिले के साथ जो एक छोटा सा बच्चा था, वो कौन था? वो बिले का फ्रेंड था। ओके जी, अनुष्का? अनुष्का, ओपन योर माइक बेटा। सर, मुझे ये पूछना था कि जब जॉय वो भूतिया वाला बंगला में गया, तब उसके साथ क्या हुआ? क्या हुआ वो कल पता चलेगा, सस्पेंस है ना। अभी क्या हुआ वो तो आपने देखा ना। यस सर। हाँ, अब आगे क्या होगा वो कल पता चलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सस्पेंस। ओके ओके, पार्थ प्रतिम कश्यप। सर मेरे को जल्दी आ जाता है, तो गुस्सा थोड़ा कम करने के लिए क्या करेंगे? आपको क्या आता है? गुस्सा जल्दी आ जाते हैं मीन्स, तो गुस्सा कम करने के लिए क्या करें? अच्छा, अमल सर, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? यस यस यस, आपको गुस्सा आता है, गुस्सा सबको आता है, लेकिन मुझे भी आता है। हाँ, गुस्से पहले तो किस चीज के लिए आता है वो हमको जानना है। ऐसा गुस्सा जो कि हमको आगे ले जाए, कि ऐसा गुस्सा कि हमको दुबला बना दे, हमको दुर्बल बना दे। इसलिए गुस्सा आना चाहिए, लेकिन उसको एक दिशा देना चाहिए, डायरेक्शन। और हम अपने माइंड को जब जानेंगे ना थ्रू मेडिटेशन, बिले का भी गुस्सा आता था, लेकिन वो गुस्सा, जैसे एग्जाम्पल कि ये डर क्यों रहा है, वो बिले को गुस्सा हो गया, डर क्यों रहा है, डरना नहीं है। तो कुछ अच्छे के लिए गुस्सा होना है पहले तो, और बाद में गुस्सा नहीं होना है और शांत होना है। शांति वो मेडिटेशन से आता है। हम जब माइंड पर फोकस करते हैं ना, अच्छी अच्छी बातों को सीखने लगते हैं, तो अपने आप गुस्सा कम हो जाता है, और खराब खराब चीजों के लिए गुस्सा नहीं आता है, छोटी छोटी चीजों के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, अभी बर्नाली बर्नाली। हाँ, बर्नाली नहीं सुनाई दिया।
वीडियो ऑफ सर करो बर्नवी। विले कौन था? विले कौन था वो कल बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, ये तो सस्पेंस है, वो कल बताएंगे, ठीक है? ओके। अच्छा, जिन्होंने पूछ लिया है ना क्वेश्चन, वो हैंड्स डाउन कर लो। हाँ, जो येलो वाला है उसको फिर से दबा दो तो हैंड्स डाउन हो जाएगा। लोअर हैंड कर लो। ओके ओके। रॉन रॉन विक्रम, माइक ओपन करो। ओपन योर माइक। हाँ सर जॉय का जो टीचर था वो बिले था क्या? जॉय का जो टीचर था वो बिल, हाँ जॉय का जो टीचर था वो तो बिले था। सही प्रिया? टीचर ने बिले को स्पेस। सही प्रिया, थोड़ा तेज बोलना। सर टीचर ने बिले को स्पेस से दूर रखने के लिए क्यों बोला था? अमल जी, आपको सुनाई दिया क्या? नहीं, समझ में नहीं आया। सही प्रिया, थोड़ा एक जगह बैठ जाओ और फिर बोलो, आप बहुत हिल डुल रहे हो, और तेज बोलो थोड़ा। मतलब टीचर ने डांटा क्यों था बिले को स्पेस से दूर रखने के लिए? टीचर ने डांटा क्यों था? टीचर ने इसलिए ही डांटा क्या, वो आप टीचर तो पढ़ा रहे थे ना, आपकी भी टीचर अगर कभी कभी पढ़ाते और आप उन्हें लगे कि आपका ध्यान क्लास में नहीं है तो वो भी डांटेंगे, बट बिले के केस में ऐसा नहीं था। हाँ, तो जस्ट उसका एग्जाम लेने के लिए उन्होंने ढेर सारे क्वेश्चन पूछ डाले उससे, ठीक है? ओके। अर्चिता? सर काली मैं वीडियो तो दिखिलो गानर हे तो पालन है। अमल जी? वीडियो दिया था। हाँ हाँ मिला था, बट मैंने बोला, मैसेज किया था ना ग्रुप में, हमारे पास बहुत सारी चीजें आई थी ना, इसलिए हम आपको टैलेंट शो वाले दिन पक्का से आप सबको मौका मिलेगा, किसी को ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिलेगा, सब अपना टैलेंट दिखाओगे, डोंट वरी, ठीक है? ओके ओके। आस्था? सर काली रातिपुआ আপুনি গানৰ ভিডিও দিব দিছিলে নেকি? হয় হয়। স্যার তুমি আপোনাৰ নম্বৰটোত ভিডিও কৰি দিলেই হ'ল। হয় হয় হয়, এতিয়া ঠিক আছে, দি দিবা। আমাৰ শান্তনু সাহেব মোৰ নম্বৰ দি দিলে। স্যার তাত কিবা হেৰি বজাব লাগিব নেকি ঢোল পেপা? হা? তাত কিবা বাদ্যযন্ত্ৰ বজাব লাগিব নেকি? টেলেণ্ট শ্ব'ৰ দিনাখন তোমালোকে যোনে যি কৰা চব কৰিবলৈ দিয়া হ'ব, যেনে কোনোবা গান গোৱা, কোনোবাই বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱা, সকলোকে দিয়া হ'ব। গানটো গালে তাত একো কৰিব নালাগে না, অকল গান গালেই হ'ল? গান গালেও হ'ব, বাদ্যযন্ত্ৰ বজাব খুজিলেও বজাব পাৰা, তোমাৰ ইচ্ছা। হ'ব স্যার। হয়। मैं बार बार ना उसका नाम भूल जाता हूँ, अपने मदर का पूर्णिमा सेक्याडे का आपकी मदर का नाम है, बट मैं आपका नाम भूल गया बार बार। प्लीज ओपन योर माइक। हाँ बेटा, नाम बोलना, मैं लिख लेता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, नाम बोलो। हाँ, मेरा नाम विक्रम देका है। अच्छा ठीक है विक्रम, अपना क्वेश्चन पूछो। आप लोग जो हमारे विवेकशाला के ग्रुप में जो एक लिंक देते हो जूम क्लास के लिए, वो लिंक करने पर नहीं आता। लिंक क्लिक करने पे नहीं आता, वो एक्चुअल में शायद या तो आप हम लोग का जिस नंबर से लिंक आता है ना उसको सेव कर लो, ठीक है? उस नंबर को सेव कर लेना, क्योंकि ना जब कोई भी नंबर सेव नहीं होता है ना तब व्हाट्सएप उसको लिंक पे क्लिक नहीं करने देता, और जैसे हम सेव कर लेते हैं ना नंबर को, या उसके नीचे देखना कहीं ओके वोके लिखा होगा तो उसको क्लिक कर देना तो सेव हो जाएगा। अगर फिर भी कुछ नहीं होता है तो मुझे मैसेज करना, उसी समय मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है। मृगराज? मृगराज? सर सर मूवी का नाम क्या है? मूवी का नाम नहीं बताएंगे। मुझे मालूम है क्यों पूछा है।
ओके, रोजलिम। सर बिले का फुल नेम क्या था? वो भी नहीं बताएंगे, वो कल बताएंगे, सब सस्पेंस है। ओके, ह्यूमनी। ओके, नयन। नयन। सर जतिन बुरा सर कब आएंगे? अरे अमल जी। সারপ্রাইজ হয়তো আজিও আহি যাব পাৰে, ঠিক নাই, ৰেডি থাকিবা। ओके, अंकित। सर मेरा मतलब अमल सर से एक क्वेश्चन हाँ हाँ, था। पूछिए पूछिए, जिससे भी हो। अमल सर মানে কোনোটা বিষয়বস্তুৰ প্ৰতি মানে মনোযোগ কেনেকৈ প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰি? প্ৰথমতে আমি মনটোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব। আমাৰ মনটো, মনোযোগ মানে কি? কনচেন্ট্ৰেশন ন। আমাৰ মনটো য'ত গৈ থাকে আমি সেয়াই পাতি আছো বিবেক চালাত। বান্দৰৰ নিচিনা আমাৰ মনটো, যেনেকে ওয়াইন অফ ডিজায়াৰ আৰু স্কৰপিঅ অফ জেলেচি যেনে কামোৰে। আমাৰ মনটো বহুত অশান্ত আৰু ওপৰৰ পৰা ভূতে ধৰে। সেই মনটোক আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলেই, চেনেলাইজ কৰিলেই আমাৰ তেতিয়া একাগ্ৰতাটো বাঢ়ি যাব, কনচেন্ট্ৰেশনটো বাঢ়ি যাব, পঢ়াত মন বহিব। বিলে চোৱা, বিলেক দেখিছানে? ইমান কনচেন্ট্ৰেশন আছে যে তেওঁক দেখিলে লাগে কি কথা পাতি আছে বা ধেমালি কৰি আছে, কিন্তু গোটেই ধ্যানটো পঢ়াত আছে। মাষ্টৰে যি সুধিছিলে এজ ইট ইজ কৈ দিছে। গতিকে সেইটো আমাৰ হ'ব পাৰে। বিলে কোনো ভগৱান আছিলে নহয়, বিলেও সেইখিনি কোৱালিটি ডেভেলপ কৰিছিলে। আৰু সেইটো কৰিবলৈ আমাৰ য়োগা, মেডিটেশ্যন আৰু আমাৰ পঞ্চশীল আমি পঢ়িছো যে, সেয়া কৰিব লাগিব। আৰু সেয়া তোমালোকক ইয়াত শিকোৱা হ'ব, শিকোৱা হৈ আছে, শিকোৱা হ'ব। ঠিক আছে अंकित? उसका माइक। ओके, ह्यूमनी आप पूछिए, क्या पूछ रहे थे? कौन कौन? ह्यूमनी, ह्यूमनी, ह्यूमनी नाथ। माइक ओपन किया बट। हियामोनी, हाँ हियामोनी। ओके, ठीक है, आगे बनदीप। सर। बनदीप पहले कैमरा ऑन करो। सर जब जब जॉय भूत बंगले से निकला तब नाव में जो कछुए थे, कछुए के साथ जो दादाजी थे वो कौन थे? वो बिले को वायलिन सिखाते थे। वो वायलिन बहुत अच्छा बजाते थे, वो मास्टर थे बिले, मतलब वायलिन मास्टर थे। ओके, ठीक है। यस सर। सृष्टि। सर जॉय ने उसकी साइकिल क्यों ले गए थे? जून की साइकिल क्यों ले गए थे? हाँ, मस्ती कर रहा था ना। आप लोग भी तो ना अपने दोस्तों की चीजें लेके इधर उधर चले जाते हो, तो सेम वो भी मस्ती कर रहा था। ऐसा होता है ना, करते हो कि नहीं करते हो? करते हो, पता चल रहा है, जितनी स्माइल है ना चेहरे पे उससे पता चल रहा है करते हो। अच्छा, ठीक है। जिया। हाँ सर। हाँ सर, मुझे ना हम इतना पढ़ता है, इतना पढ़ते पढ़ते इतना समझता है, पर मुझे याद ही नहीं होता कुछ भी। अमल जी। सर ये मेरे साथ भी होता है बहुत बार। ये आप लोगों के बहुतों के साथ होता होगा, हमें मालूम है। याद वैसे देखो, ये कोई ये नहीं है, याद हम भूल जाते हैं, लेकिन हम जैसे ही माइंड को कंसंट्रेट करने लगते हैं वो चीजें अपने आप वो हमें याद होने लगता है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ, एक तालाब है, तालाब में पानी बहुत गंदा है, उसमें पत्थर मार दोगे तो कुछ अंदर में जो है दिखेगा नहीं, लेकिन जब तालाब शांत रहेगा ना, उसके नीचे क्या क्या है, मछली है, पत्थर है, कीड़े हैं, सब कुछ दिखने लगता है है ना। जैसे ही माइंड हमारा शांत हो जाएगा तो हमें मेमोराइज भी होने लगेगा, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। तो माइंड पर ही हमको काम करना है।
Daddy Oli. Open your, oh sorry, open your mic again. Sir, মানে Amal sir. Sir, ৰাতিপুৱা মানে সদায় ৰাতিপুৱা সেশনটোত মানে এটা কোটেশন থাকিব নেকি সদায়? হয়। কোটেশন দিয়া হ'ব? ঠিক আছে sir. सुधाकर। Sir. हाँ बोलिए। ধ্যান কৰিলে কি কি লাভ হয়? ধ্যান কৰিলে প্ৰথম লাভ হয় আমাৰ কনফিডেন্স বাঢ়ে, একাগ্ৰতা বাঢ়ে আৰু স্মৰণ শক্তি বাঢ়ে, মেমৰি, আৰু আমাৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশ হয়। जुमन ज्योति। सर यहाँ पे वो टैलेंट होगा ना आपका आवाज नहीं आया क्लियर, नेटवर्क इश्यू हो गया। जुमन आप ना चैट बॉक्स में लिख दो। ओके रीमा। रीमा सर। बोलिए बोलिए बोलिए। हम अपने लक्ष्य में उपनीत होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए अमल से पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और जैसे हम कल बताए थे ना, हाँ शांतनु सर बता रहे हैं। हाँ देखो, लक्ष्य अपना पाने के लिए ना पहले तो हमें सबसे बड़ी चीज हमको क्या करनी पड़ेगी, हमारे सर ने बताया था, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रयास। हाँ, कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस। हाँ फिर देखो एक स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था ना, विवेक चाला में एक फीस देनी हुई। क्या फीस थी वो? PFD। हाँ PFD। पी तो मतलब था प्रॉमिस, प्रॉमिस मीन्स प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। फेथ मतलब क्या था? विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास किसके ऊपर? अपने ऊपर करना पड़ेगा कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ। सपोज आपको गाड़ी चलाना सीखना है या साइकिल चलाना सीखना है, हाँ तो पहले पहले दिन आपको थोड़ा सा डर लगेगा ना कि साइकिल डगमग हो रही है मेरी, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे, लगातार उस चीज को करोगे, तो आप साइकिल चलाना सीख लोगे। ठीक है। और लास्ट हमारा था डिटर्मिनेशन। अमल सर डिटर्मिनेशन को क्या कहते हैं? वो उसमें डेडिकेशन था। डेडिकेशन था ना? डेडिकेशन। हाँ डेडिकेशन, समर्पण। हाँ समर्पण। हाँ समर्पण इन द सेंस जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपका गोल है, आपने उसमें अपना कितना फोकस किया, कितना टाइम दिया, और इस तरह से अगर आप चीजें करोगे ना, तो जो भी आपका गोल है लाइफ में, आप उसको कंप्लीट कर पाओगे, अचीव कर पाओगे। ओके ओके। लास्ट क्वेश्चन टाइम। अच्छा हाँ लास्ट तो ठीक है, लेकिन ठीक है ले लेते हैं। ओके 3-4 लोग हैं, ले लेते हैं। लेकिन जिनका क्वेश्चन हो चुका है मैं उनको दोबारा नहीं लूंगा। बर्नाली सॉरी। हाँ आप लिख दो चैट बॉक्स पे। अभिज्ञान। हाँ सर, मेरा पहला क्वेश्चन है कि बिल्ली ने अपनी दोस्त को भगाने के लिए गोबर पर क्यों कूदा? मस्ती कर रहा था ना वो। और मस्ती में तो ये होता है ना, आप अपने दोस्त के साथ मस्ती करोगे तो आप चाहोगे वो मैं जीत जाऊं, वो चाहेगा वो जीत जाए, ऐसा होता है। सिंपल वही उसने किया, हमारे जैसे काम किया। बिल्ली कोई बहुत ऐसे कोई वो नहीं था, बहुत बड़ा ऐसे आयरन मैन सुपरमैन नहीं था। उसने वही किया जो हम करते हैं। ठीक है ओके सर। प्रियांशु। यस सर। सर ये बिले का मास्टर का नाम क्या था? बिले के मास्टर का नाम तो मुझे भी नहीं पता। ओके सर। हाँ जो मास्टर थे उनका नाम पता है, लेकिन वो आने वाले टाइम में कभी हम जब और आगे मिलेंगे तब बताएंगे। ठीक है। बट जो अभी मूवी में मास्टर थे उनका नाम नहीं पता, वो जस्ट एक कैरेक्टर है। हाँ अरण्यक। यस सर। सर आप मूवी का नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन
इस मूवी के डायरेक्टर का नाम बता दीजिए। विकेट मूवी ना हमारे भारत सरकार ने बनाया था, ठीक है, और रामकृष्ण मिशन ने, ठीक है, रामकृष्ण मिशन और भारत सरकार ने मिलकर बनाया था, ठीक है। आप डिसाइड कर लो कौन डायरेक्टर था, ये दो लोगों ने मिलकर साथ में बनाया था, ठीक है। ओके, कुलदीप सर। हाँ, कैमरा ऑन करो पहले, तो कैमरे के पीछे बात नहीं। सर सर डिम्पू कब आएगा? मेरा अरे डिम्पू कब आएगा? अमन से डिम्पू कब आएगा? डिम्पू आएगा, काउंटडाउन शुरू, 5 4 3, बस रुके रहो, आएगा। जैसे देखो कल आपको पता चल गया था ना कि 2 लोग आ रहे हैं म्यूजिक सेशन के लिए, वैसे आपको ये भी पता चल जाएगा डिम्पू कब आएगा या बाकी गेस्ट कब आएंगे, ठीक है। ओके ओके, बर्निल कार्तिक, कैमरा ऑन, कैमरा ऑन। ओके, कौन बचा? कोई बचा क्या? हियोमनी आप बोलो, माइक ओपन करो, हो रहा है आपका? हियोमनी ओके, बर्निल आप बोल रहे हो गया आई थिंक सबका, ठीक है। फिर हम शाम को मिलते हैं और जो भी शाम को चीज होगी वो आपको बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। आप सबके माइक ओपन है और हम फिर शाम को मिलते हैं। ओके, बाय बाय एवरीवन। बाय बाय सर, बाय बाय। बाय।